So hey everyone, welcome or welcome back to another episode of The Sankalp Show. So in today's episode we have Aniket Pal. Aniket Pal is a final year student at NIT Rourkela, and in this particular episode we have discussed a lot about open source contribution, Google Summer of Code, and a lot more things which are related to software engineering. Now we have also discussed about if you're a person who is just starting out with open source, how you can actually go ahead and make a career out of it. We have also discussed on how to break the Google Summer of Code and get at a better position. And Aniket too have a YouTube channel where he guides all the students who are trying to get ahead in the Google Summer of Code or wants to contribute to the open source contribution. So make sure that you go down in the description. The link is there in the description. Make sure that you check that out as well and enjoy the conversation. First of all, Aniket, thank you so much for being there on our show. It's really a pleasure to have you. Thanks, Shankar, for having me. Yeah. So first of all, Aniket, you are a part of electrical engineering group from NIT Rourkela, right? But Absolutely. but as we have seen from your LinkedIn and other media profiles, you have more interested towards software engineering side, right? And you are currently interning with a software engineering company as well. So first of all, why is this so? And second off, what really matters when a student goes to a college? Like, is it branch or is it college? Okay, so काफ़ी बड़ा सवाल है and I काफ़ी know. important सवाल है. I totally understand. So as of now, I recently graduated from NIT Rourkela. Oh, I will great. be joining a company in July. Mm-hmm. So I will be relocating to Bangalore. So it is Wells Fargo I will be joining. So the thing is, इनिशियली मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल में. Mm-hmm. तो जब जेई वगैरह दिया था मेरे को बहुत मज़ा आता था सर्किट्स वगैरह सॉल्व करने में. तो मेरे को लगने लगा था कि दैट इज़ ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. Oh. बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग व्हेन आई मेट द प्रोफेसर्स. एंड Mm-hmm. उसके बाद मेरा सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट उतना गिर गया. एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा दिखा कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक आई डोंट बिलीव इन बिल्डिंग अ लॉट ऑफ हार्डवेयर चीज़ें एज वेल. जैसे Mm-hmm. आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन रोबोटिक्स बिकॉज मेरे को रोबोटिक्स का यही लगता है कि जैसे इट इज़ स्केल करने में कुछ Mm-hmm. भी प्रोडक्ट यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मनी. जैसे सिंपली अगर मैं कुछ भी एक बना हुआ है आई नीड आर्डिनो, तो आर्डिनो अपने को खरीदना होता है. सही तो बात. मेरे को वही लगता था कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं कुछ एंड टू एंड बनाना चाहता हूँ Mm-hmm. तो सॉफ्टवेयर इज द थिंग जिसपे अपने को वो मिलता है, किक मिलता है. Yeah. So now इसीलिए दैट इज द रीजन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर. एंड उसके साथ Mm-hmm. बहुत रीजंस है बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू कोड इन स्कूल, बट अपने स्कूल में उतना अपॉर्चुनिटी था नहीं. तो कॉलेज आया, मैंने एक्सप्लोर किया, मेरे को अच्छा लगने लगा. एंड Mm-hmm. मैंने अपना सेकंड ईयर में एक्चुअली स्टार्ट किया. तो मैंने Okay. पूरा फर्स्ट ईयर आई हैड नो आइडिया कि चल क्या रहा है, करना क्या है. Mm-hmm. सो सेकंड ईयर से मैंने स्टार्ट किया, दैट इज हाउ इट वेंट. नाउ टॉकिंग टू योर क्वेश्चन कि कॉलेज मैटर करता है कि ब्रांच, तो व्हेन आई जॉइंड मेरे को लगता था कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. एंड टिल नाउ इट इज नॉट अ वेरी इजी टू like give an Choose. answer, Yeah, right? I understand. Because but at the end what I realized कि college matters more. Mm-hmm. because आपको टीचर्स वगैरह ठीक है, लाइक आई गेस सारे कॉलेज में सिमिलर होते हैं कि कोई उतना सुनता नहीं टीचर का. Mm-hmm. So, अपन अपना सीखते हैं, पीयर सर्कल जैसा है, उधर से अपने दोस्त वगैरह से अपने को इंस्पिरेशन मिलता है. Actually. तो जितना अच्छा कॉलेज रहता है अपने को उतने हाइपर एक्टिव लोग देखते हैं Mm-hmm. कि अरे ये बंदा ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इसको स्पोर्ट्स भी आता है, ये इतना बढ़िया डांस भी कर लेता है, साथ साथ देखो भाई क्या ही कर रहा है पढ़ाई लिखाई में. तो इस टाइप का वैरायटी ऑफ पीपल आई फील इज द रीजन आईआईटी एंड बाकी कॉलेज आईआईटी के साथ कंपेरेबल नहीं है. बिकॉज उधर लोग Absolutely. दे आर डूइंग मल्टी डायमेंशनल थिंग्स. एंड Mm-hmm. लाइक पढ़ाई सभी कर रहे हैं, बट उसके हाँ. साथ साथ चीज़ें जो वो लोग कर रहे हैं दैट इज वे डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज व्हाट आई हैव सीन. All सो right. कॉलेज मैटर्स बट It's a great answer, basically, right? And moving on, so we have seen that you are a quite a good contributor in open source, right? So first of all, like tell us more about ki what exactly is open source and how a student can get into one. ओके. सो ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स इज एनीथिंग जिसका कोड किसी को भी दिख सकता है. ओके. Okay. सो जैसे एग्जांपल वीएलसी मीडिया प्लेयर, Mm-hmm. ठीक है. आई गेस दैट इज समथिंग दैट इज बीन यूज्ड बाय एवरीवन. बिकॉज Everyone. एक और अच्छा एग्जांपल रहता है दैट इज क्यूबरनेटिस. Mm-hmm. बट आई एम नॉट श्योर अगर एवरीवन इज फेमिलियर विद क्यूबरनेटिस. सो फॉर सिंपलिसिटी वीएलसी मीडिया प्लेयर. Mm-hmm. अब वीएलसी मीडिया प्लेयर का कोड जो है दैट इज ओपन सोर्स्ड. इवन जो Mm-hmm. अपना एंड्रॉयड जो अपने Mm-hmm. फोन पे है उसका कोड इज ओपन सोर्स. तो अब मान लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जैसे अपने को एंड्रॉयड फोन्स में दिखता है कि कुछ कुछ एंड्रॉयड के
वर्जन्स हैं जिसपे जो वो अपने को एंड्रॉइड फोन में मैक वाले इंटरफेस दे रहा है. It is only possible because उसका कोड ओपन सोर्स ओपन है सोर्स है, and ओके. people can change the interface according to their need. तो अगर आपको मान लो आप एंड्रॉइड में आपको काम करना है, आपको एंड्रॉइड का कोई एक पर्टिकुलर फीचर में मजा नहीं आ रहा, आप उसको उठा सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो, एंड देन यू कैन इंस्टॉल इन योर फोन एंड इट विल वर्क. सो दिस इज ओपन सोर्स. एंड इनिशियली आई स्टार्टेड विद ओपन सोर्स विद हैकटोबरफेस्ट करके एक प्रोग्राम होता है. या तो उसके थ्रू आई गेस मैक्सिमम लोग ही स्टार्ट करते हैं. दैट इज रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय डिजिटल ओशन. सो उसके थ्रू मैंने अपना ओपन सोर्स वाला जर्नी स्टार्ट किया था, एंड देन आई बिकेम अ गूगल समर ऑफ कोड मेंटी yeah विद yeah yeah we will discuss on that as well. So Aniket, like generally open source में क्या होता है ना कि people और especially जो student नए नए आ रहे होते हैं, they find it very difficult. Like initially मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई exactly होता क्या, because people actually start with either web development or Android development and they slowly gradually move and find out कि भाई exactly है क्या चीज़, right? So how did you differentiate कि भाई हाँ exactly this is something that is like open source, that this like there's something called as open source contribution, right? So when is it successful? Like when do you decide ki okay, this open source contribution is what I'm doing right now and it is getting successful ahead? Okay, like I guess every contribution matters. Okay, like suppose we are building a big thing जैसे Kubernetes. Okay, तो Kubernetes is a very big tool. तो जैसे whenever अब उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे senior engineers are building that. But now the thing is कि डॉक्यूमेंटेशन के बिना जो नए लोग उसमें एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होगा घुसना, बिकॉज सबको पढ़ के घुसना होता है. तो अगर आप एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन में फिक्स भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो मेरे हिसाब से सारा ओपन सोर्स जो भी आप कंट्रीब्यूट कर पाते हो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. अब ये जो डाउट होता है, इवन आई स्टिल फेस, देयर आर सम प्रोजेक्ट जिसमें मैं घुस नहीं पाता हूँ. आई एम ट्राइंग टू गेट इन बट इट गेट्स डिफिकल्ट because not every project accepts any random pull request because they want to avoid जैसे because क्या होता है ना कि मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स जब कंट्रीब्यूट करते हैं, एक फ्लो में इशू हो जाता है. Okay. बिकॉज एक मास्टर ब्रांच रहता है, राइट, अल्टीमेटली, एंड दैट इज डिप्लॉयबल ब्रांच फॉर एग्जांपल. तो अगर एक भी पुल रिक्वेस्ट से कुछ भी कोड ब्रेक डाउन हो जाता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड एवरी पुल रिक्वेस्ट नीड्स टू बी रिव्यूड, एंड सबके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है बिकॉज मैक्सिमम लोग आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड उसके बाद दे आर वर्किंग ओपन सोर्स, एंड काफी कम लोग होते हैं जो फुल टाइम ओपन सोर्स करते हैं, तो लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं रहता फॉर रिव्यू. तो इनिशियली मेरा वही सजेशन रहेगा, फाइंड बिगिनर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उसमें आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट करो. आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ इशू दिखता है, सो यू कैन चेक दैट एंड यू कैन सेंड अ पुल रिक्वेस्ट, एंड it can actually go a bit long. So folks, I have actually made a video on this, so you can just check that out. I hope Shankar will be linking my YouTube channel. Sure. Yeah, that won't be an issue. So Aniket, you also mentioned about a term called as Hacktoberfest, right? And people from computer science, like we know what exactly it is, but we have also seen that you have participated and won in over 10 plus international hackathons, right? And when it comes to hackathons, there's a lot of confusion that exists in students right now. ठीक है कि first of all, like क्या होता है exactly, है ना, and कहाँ से you get the access to hackathons and all that. So first of all, कितने like exactly होता क्या है hackathon में? Like do you need to go to a place and then code and do anything like that, or is it something that can be done remotely? Okay. तो पहली बार जब मैंने सुना था हैकाथन के बारे में, आई इनिशियली थॉट दैट it's basically hacking. Okay, so you need to just go and you need to ethically hack a system. And even when I organized my first hackathon, that was named Hack Odisha. So a lot of people thought कि हम उड़ीसा गवर्नमेंट को हैक करने जा रहे हैं. So that is not how it works. तो अगर आप नॉर्मली YouTube वीडियोस भी अगर देखे होंगे ना कि 101 ट्रिक्स टू हैक योर डेली लाइफ, या फिर जैसे उसमें क्या होता है कि सिंपली आपको एक कपड़े को अच्छे से फोल्ड करने का तरीका, दैट इज अ हैक. कोई अगर उसका कुछ मतलब ट्रिक निकालता है या फिर सॉल्यूशन निकालता है, तो दैट इज नोन एज अ हैक. सो इसी को हम हैकाथन बोलते हैं, एंड इन विच लाइक हैकाथन वेरीज, एंड जनरली अपने को कोड लिखना होता है इन एवरी हैकाथन, एंड या फिर कुछ हैकाथन्स होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन आइडिएशन एज वेल. अगर आप अच्छे हो, इफ यू गिव एन आइडिया, so you can submit them and you can even win the hackathon, but generally you need to build at least a prototype, a working model of the features जो आपने mention किया था. All right. तो पहला hackathon like I took part when I was in my second year, and now finding hackathons was a very big deal. So there are actually 5 resources which you can follow to find it. Firstly, एक तो devfolio हो गया, एक HackerIt हो गया, एक devpost हो गया, and एक और MLH के हैकाथन्स बहुत अच्छे होते हैं. Yes. And apart from that, there is like
Twitter handles जो आपको particularly they give out the uh, list of hackathons whenever it is coming through. yeah. All right, There all is a right. how you can find a hackathon. Yeah. You know, back then when I started out to find out the different types of hackathon that are available, I only get to know about Hacker Earth के बारे में मुझे पता था लगा सिर्फ. And then I did not like वो लंबे लंबे होते हैं काफी like you Yeah. know its duration काफी vary कर जाता है and all. Right. So हाँ, and that's how. company Yeah. hackathons also has a barrier, right? Like because ultimately it is a hiring hackathons. तो Yeah. उसमें Hiring hackathons. Yes. हाँ, Yes. तो उसमें आपको लाइक वो आपको एक बार वो करवाएंगे, देन दे विल टेक यू, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा भी होता है, आपको एक कुछ काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाना होता है, हाँ. देन यू गेट विन. बट Yeah. इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है तो Uh-huh. यार स्टार्ट करो स्टूडेंट रन हैकाथन से, एंड आई Okay. गेस दैट इज अ बेटर किक विद रिस्पेक्ट टू पूरे पूरे सेगमेंट में घुसना, लाइक All कंपनी right. वाले. All right. So आपकी एक वीडियो से मैंने ये भी देखा था कि there are like two types of hackathons that exist. Like one is the company based or company related hackathon. Then the other one is a स्टूडेंट high रन. student run. Okay. So like when is the exact time like when like for example a person knows कि उसे आता है कि coding वगैरह करना सब कुछ अच्छे से. So shall he should go towards more of a student run hackathon or company or hiring specific? तो इट डिपेंड्स, जैसे अगर आपको कोडिंग आता है नहीं आता है, आई वुड से कि हैकाथन एवरीवन शुड टेक पार्ट इन, All right. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड मैं सेकंड ईयर में था, मेरे को लेजिट कोई आइडिया नहीं था. Mm-hmm. मैं कुछ दिन पहले बस HTML एंड CSS सीखना स्टार्ट किया था. All right. तो उसके बाद विद दैट नॉलेज, एंड वो 2 दिन था, 36 आवर्स हैकाथन था, वो MNH का एक हैकाथन था, एंड इन दैट आई बिल्ड एन AR/VR ऐप. आई All हैड right. लेजिट नो आइडिया AR/VR होता क्या है. तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि स्नैपचैट वगैरह में जो फिल्टर्स वगैरह आते हैं, हाँ. वो कुत्ता बिल्ली वाला, तो वो हाँ. AR बोलते हैं उसको. तो तो उस टाइम पे 36 आवर्स में मैंने टोटली पूरा चीज सीख के मैंने हम्म. बनाया था. ऑल्दो मैं जीता नहीं था, बिकॉज हाँ. देयर वर पीपल हु वर ऑलरेडी काफी उनको आता था. हम्म. सो द थिंग इज कि एवरीवन शुड टेक पार्ट इन हैकाथन, एंड हम्म. नाउ व्हेन इज द टाइम कि कोई कंपनी वाले में जाए, कोई स्टूडेंट यस वाले. यस आई यस वुड यस. से एटलीस्ट अगर आप 1 या 2 स्टूडेंट एंड हैकाथन में पार्ट लो, हम्म. आपको समझ आने लगे हम्म. कि करना क्या एग्जैक्टली. बिकॉज काफी लोग क्या करते हैं, द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट दे बिल्ड इज दे ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी फीचर्स एज दे वांट, हम्म. एंड दे डोंट फोकस कि कुछ यूनिक बनाना है. तो हम्म. जब को आपका वो किक हिट हो जाएगा ना कि अपने को अल्टीमेटली ये नहीं करना है कि बहुत सारे फीचर डाल देना है, वी नीड टू हम्म. फाइंड अ प्रॉब्लम, एक छोटा सॉल्यूशन अपने को निकालना है. हाँ. लाइक हाउ दिस इज बेसिकली यू नीड टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, जहाँ पे हम्म. आपको पूरा पूरा चीज नहीं करना है, आपको पूरा दुनिया बदलना नहीं है, आपने को अपना नीश पकड़ना है, उस नीश में आपको सॉल्व करना है. सॉल्व तो करना वो चीज एग्जैक्टली. आपको जब मतलब अब समझ जाए, उसके हाँ बाद हाँ. आप जाए. एंड मेजरली अगर आप थर्ड ईयर में हो, देन यू कैन हाँ. टेक पार्ट इन हायरिंग हैकाथन्स, हम्म. जो इंटर्न्स हायर करते हैं. और आप फाइनल ईयर में हो, देन अप्लाई, जो फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर करते हैं. सो दैट इज द थिंग आई कैन से. ऑल राइट. सो लाइक आपने कब से शुरुआत की थी लाइक यू गो अहेड विद द स्टूडेंट रन हैकाथॉन्स और डायरेक्टली विद द कंपनी रन्स वंस? मैं मेजरली स्टूडेंट एंड हैकाथन से किया था. सो अच्छा. एंड आफ्टर दैट लाइक काफी दिनों बाद, बिकॉज मेरे को दिख रहे थे कंपनी रन हैकाथन, हम्म. एंड आई सॉर्ट ऑफ एक हैकाथन था जिसमें मैं टॉप 5 में आया था. हम्म. एंड उसके बाद उनको अच्छा लगा द थिंग व्हाट आई हैव बिल्ट. हम्म. दे आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम देम. हम्म. लाइक इट वाज अराउंड आई गेस 26 पैकेज भी था, बट अच्छा. रिसेप्शन के चक्कर में इट गॉट रिवोक्ड. ऑल सो राइट. या. So like, do they pay good? Like, if a software engineer or anybody is trying to go ahead or break into tech industry, but through hackathons, company run hackathons, like, do company run hackathons pay on an average? Do they pay good, or is it या like, all right, काफी अच्छा पे okay, करते, बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट ग्रिड देखते हो, अच्छा, फ्लिपकार्ट ग्रिड का अभी मैक्सिमम हायरिंग ही ऑफ कैंपस हो रहा है. okay, लाइक पूरा का पूरा जो उनका ऑफ कैंपस हायरिंग है, दैट इज देयर टेकिंग विद फ्लिपकार्ट ग्रिड. सो दे okay, पे गुड यार. लाइक एंड मोर ओवर व्हेनेवर आप हैकाथन वगैरह से जाते हो, दे नो हम्म. योर वैल्यू. ठीक है, अभी ऑनलाइन अभी जितना मेरे को लगता है ना कि आई गेस अगर पॉसिबल होता है, काफी हम्म. कंपनीज ये करेगी कि हैकाथन्स करके लोग उठाना, बिकॉज द हम्म. मेजर प्रॉब्लम विद आजकल OTs सब लोग चीटिंग करके दे रहे हैं. तो Oh, उसमें इशू बिल्डअप हो जाता है, राइट. okay, तो आपको वो टैलेंट नहीं मिल पाता, बट जब आपको पता है कि ये बंदे को आता है सारा चीज करना, वो एंड हम्म. टू एंड प्रोडक्ट बना पाता है, हम्म. तो यू गेट ऑल्सो चांस टू आप नेगोशिएट योर ऑफर. हम्म. सो इट इज गुड पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं है कम मिलता है. All right, all right. So, Aniket, when we look at hackathons specifically, right? So they are more of a product or a project building side, right? मतलब उनमें Yeah. project building थोड़ा ज़्यादा आ जाता है as compared to, but there are also kind of people like who are very interested in competitive programming, let's say, right? They participate in different kind of competitive programming challenges that happen on different websites, right? So, Yeah. so like. If anybody from both the ends of both the niches want to break into each other domain,
right? So suppose for example, like CP guy wants to enter into hackathon one, and hackathon guy wants to enter into CP ones. So how can that shift actually happen? I don't think so. Hackathon is sort of a domain we can think of. Okay. Like either we can think doing Development. development, or doing CP, right? Mm-hmm. So देखो मेरे हिसाब से if someone is doing CP Mm-hmm. and like legit properly doing CP, ऐसा नहीं कि like थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगा दिए कोड फोर्सेस पे and अपने को लगने लगा अपन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, ऐसा नहीं. Uh-huh. You should have very good hold of everything. तो मेरे हिसाब से it won't take a long time for them to understand uh, the basics of web development. So they can start Okay. building, simple जैसे कुछ भी ग्राफ का प्रॉब्लम उठा दो. Mm-hmm. ओके, तो जैसे मान लो कि एज ऑफ नाउ उबर वगैरह एंड एनी एनी आप फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है, Mm-hmm. दे आर हैविंग इश्यूज विद जैसे फूड डिलीवरी. तो जैसे Mm-hmm. कुछ कुछ सर्कल्स में एक रीजन, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं फॉर Mm-hmm. एग्जांपल. सो फॉर समवन हु इज डूइंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, Mm-hmm. दे कैन इम्प्लीमेंट मोर ऑन एल्गोरिदमिक साइड. Okay. जैसे रिसेंटली बॉम्बे में एक स्टार्टअप था जिसमें आई गेस एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चे ने Mm-hmm. पूरे बॉम्बे को 12 जोन्स में डिवाइड किया था. Uh-huh. एंड ही वाज यूजिंग सम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो उसने खुद से लिखा था. Okay. So in a very similar way, competitive programmers are good with algorithms. Uh-huh. They can solve problem that has algorithms at its core, Mm-hmm. and उसको डिस्प्ले करने के लिए they can just build a simple website. Simple. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पाइथन वगैरह से आप कोड कर रहे हो या फिर हम्म। आप C++ में कोड करके आप उसको एज अ बंडल मतलब रेंडर कर सकते हो, हम्म। then you can include that with Streamlit का front end and your C++ का bundle. So Oh. उसमें भी वो चीज़ हो जाता है. Streamlit में front end बनाने में at max 5 से 10 मिनट लगता है. Okay. So you need not know a lot of things, but if you know how, if you're a competitive programmer, I don't think so आपके लिए issue होता है. Okay. But majorly people who are in the dev side, Mhm. उनके लिए थोड़ा issue हो जाता है to get into the competitive programming, Hmm. because you need to know a lot of algorithms and उसमें time taking a process. इतना Time easy taking नहीं है. process actually. Yeah. So Aniket, you are work. I mean, you have worked as a mentee at IHR, like GSOC mentee at IHR. So first of all, we'll go ahead कि exactly GSOC होता क्या है? Like GSOC, I know that Google Summer of Code is an open source contribution which is run by Google, let's say, right? So according to you, what exactly it is, because you are a mentee to that, so you know, obviously you know better than that, right? So just go ahead with that. Okay. So I guess last year when I was working with Barclays, at the very same point of time I was working as a Google Summer of Code mentee. दोनों साथ साथ चल रहा था. And this year I am a Google Summer of Code mentor as well. So there will be mentees whom I will be mentoring. Okay. So now the thing is कि Google Summer of Code होता क्या है? तो as आपने mention किया, it is run by Google itself. तो Google ने पूरा चीज, मान लो Google is sitting and people like companies and organizations majorly, they approach Google कि hey, this is a project that we want to build, we are looking forward to your collaboration, so they request a collaboration request. Okay. And उसके बाद Google reviews the organization का proposal, and then they either accept that or reject that. Okay. So it's basically you are working and then you guys apply कि आपको ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया लगा and आपको उस पे काम करना है, and then you apply to that particular organization and उसके बाद you get in. So basically it's making understand Google Summer of Code होता क्या है, and it has a lot of segments. So for that I actually made a playlist of 5-6 videos. Alright, So if great. someone wants, they can actually check that out, and I guess that will be of more use because थोड़ा difficult है छोटे Yeah, में. I know. Yeah, because you know, like मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ तो people actually find it like initially, मतलब देखने में सबको बहुत अच्छा लगता है कि GSOC है, ये है वो है, but it's very difficult to break into the GSOC thing and make contribution to that. And I've also seen that people who like go or get a job through GSOC, they are seen with a different point of view when it comes to, like, let's say for interview calls, or when they go into the market and they do apply for jobs and all. So is that so? Is that like the situation in the industry? हाँ, actually it is because okay, so ये अगर मैं बताऊँ, so the मुस्कान खेड़िया दीदी was there, she was reading in CET. So एक दिन हम लोग एक organize किए थे अपना एक webinar sort of. I was running a club in my college known as WebWiz. So at that point of time she came in, and जब वो people came to know कि मुस्कान दी is coming, and उनका काफी newspaper वगैरह में news निकला था, like उड़ीसा में कुछ newspaper में, local newspaper, because CET की लड़की को मिला. Yeah, I remember. I think it was the highest package that she got in the I mean in that season. In काफी टाइम में उनको काफी अच्छा package. I remember that. Yeah, so मुस्कान दी came, and जब उनको पता चला कि वो मुस्कान दी आ रही है, so सब join करेंगे, because normally whenever you're organizing a workshop or something in college, काफी लोग attend नहीं करते, but since उनका नाम वगैरह निकला है Google Summer of Code, हो मतलब क्या ही tag है, तो इस चीज के कारण से
काफी लोग मतलब ज्वाइन कर गए थे एंड दैट वाज द हाँ। फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है। तो हम्म जिस कारण से लाइक आई गॉट मोर इंक्लाइंड इनटू इट एंड उसके बाद मैं करना स्टार्ट किया। बट हम्म एट द पॉइंट जब मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली गूगल समर ऑफ कोड होता क्या है, आई वाज टोटली ओवरवेल्म्ड, ठीक है, बिकॉज इतना सारा चीज है हाँ एंड लेजिट एक्चुअली मेरे को समझाना डिफिकल्ट हो गया। जैसे व्हेन आई हम्म गॉट इनटू गूगल समर ऑफ कोड एंड माय फैमिली मेंबर्स वाज आस्किंग लाइक कि तुम कर क्या रहे हो, हाँ एंड हाँ टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड इवन लाइक मेरे बार्कलीज को मैनेजर को लाइक आइडिया नहीं था गूगल हाँ समर कोड हाँ होता क्या है। अच्छा एंड आई आस्क्ड फ्रॉम हिम कि सर मैं अभी सुबह सुबह काम कर लूंगा आपके साथ, हाँ मैं हाँ रात को मैं गूगल समर कोड में काम कर सकता हूँ। हम्म एंड उनको भी समझाने के लिए मेरे को काफी टाइम लग गया था बिकॉज इट इज एक्चुअली फोक्स हु आर वाचिंग, इतना इजी नहीं है कि लाइक मैं 5 मिनट आपको एग्जैक्टली समझा सकता हूँ। आपको थोड़ा सा खुद से देखना होगा, नहीं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा इसी को ब्रेक डाउन करके समझाया था। या बट टिल नाउ टू बी ऑनेस्ट मैंने ये वीडियो नहीं निकाला है कि व्हाट इज दिस गूगल समर ऑफ कोड, बिकॉज आई फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू सबको समझाने में कि एक्चुअली एग्जैक्टली है क्या। होता क्या है राइट या And एब्सोल्युटली even companies like that, the reason is कि in G-Shock, हम्म what you do is you contribute to a particular organization हम्म and you have the skills कि आप end to end एक product बना सकते हो। हम्म Because जैसे मैं एक चीज़ आपको like what I personally feel, काफी लोग बोलते हैं कि they are into they are doing dev वगैरह, हम्म but they don't have the required skills and उनको एक्चुअली लगता है कि थोड़ा बहुत HTML CSS करके they can call themselves developer, but I would say even web में भी बहुत ज़्यादा बहुत deep चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस जाती है हैं। या तो उसीलिए डूइंग समथिंग आई गेस रिक्वायर्स मोर ऑफ द जैसे अब परसिवरेंस वगैरह लग जाता है इसमें। हाँ एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन गूगल समर ऑफ कोड एंड यू हैव योर कोड सॉर्ट ऑफ actually been used by people, that हम्म gives you the confidence कि हाँ मेरे को कोड करना आता है। एंड सेकंडली हम्म कंपनीज लाइक इट व्हेन पीपल आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि हाँ इससे गूगल समर ऑफ कोड किया तो इसका बेस बहुत सही बेस होगा। स्ट्रांग होगा एंड ओके एंड एटलीस्ट उसका कुछ कुछ काम इनको दिख जाता है। जैसे इवन फॉर रिक्रूटर्स, जैसे अभी रिमोट जॉब वाला सीन बहुत चल रहा है, राइट, पीपल वांट टू वर्क इन रिमोट जॉब्स। रिमोट जॉब्स या तो बिकॉज पीपल नोस, ठीक है, जैसे मैंने ओपन सोर्स से कंट्रीब्यूट किया हाँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन दिखेगा। तो अगर हाँ किसी को लगता है कि ओके सो ये वाला पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन या फिर ये वाला पर्टिकुलर फीचर इसने इम्प्लीमेंट किया था तो इसको ये आता होगा या तो इसको हायर करते हैं। तो ये ओपन सोर्स इज लेजिट लाइफ चेंजिंग, काफी लोग का जिंदगी बदला है। एंड Yeah, absolutely. Great insights on that. I mean, it's actually very difficult as you mentioned, it requires a lot of discipline and perseverance in order to actually go ahead, and it's a complex process. The whole GSOC thing it's quite a complex process, right? Moving on, we have also seen that you have worked as a GitHub extern at Numosity, right? So, what yeah. exactly is the position of GitHub extern, and what was your overall experience there? ओके, सो अभी रिसेंटली ऐसे गिटहब ने लॉन्च किया गिटहब ऑक्टो इंटर्नशिप्स बोल के। Okay. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दैट और नॉट। Mm-hmm. तो दैट इज बेसिकली ये था गूगल समर ऑफ कोड से पहले। Mm-hmm. एंड तो सीन क्या था कि मैं उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया था दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज अप्लाइंग टू एन ओपन सोर्स प्रोग्राम। Mm-hmm. एंड गूगल समर कोड में क्या होता है, आपको प्रपोजल वगैरह लिखना होता है। Mm-hmm. एंड मैंने लेजिट कभी लाइफ में नहीं लिखा था बिकॉज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम लोग कभी वो लिखते नहीं है। लिख जैसे नहीं यूएस वगैरह के जो बच्चे होते हैं ना वो एक एसओपी लिखते हैं कि अच्छा मेरे को ये वाले कॉलेज में लो वो वाले कॉलेज में लो, तो दे अच्छा हैव अच्छा अ अच्छा ओके habit of writing of statement of purpose, but we don't write a statement of purpose. So that was the first time जहाँ पे आपको अपना तारीफ करना है, राइट, एंड कि यार मेरे एक्चुअली को ये आता है, मेरे को लेना, मैं ये करके दिखाऊंगा नो। एंड तो ये वाला चीज अपने को नहीं आता है, लेजिट नहीं आता है, ठीक है। तो गिटहब एक्सटेंशिप क्या था, तो ये सिमिलर टाइप का प्रोग्राम था, a bit different from G-Shock, but it was firstly एक तो GitHub organized that. Secondly, जो companies आ रही थी, most of them were not open sourced. ओके Like they had their closed source and they were legit businesses. ओके And Numosity is also like ऐसे अगर आप EV based SaaS products के companies देखते हो तो Numosity comes at second or third. ओ ग्रेट Firstly, it's Ansler. Ansler, I guess, even sponsors Gujarat Titans. तो ओके जैसे ग्रेट IPL team Gujarat हाँ Titans. हाँ गॉट इट एंड न्यूमोसिटी कम्स एज अ सेकंड, सो इट्स काफी सही कंपनी। एंड इवन उस टाइम पे गिटहब खुद हायर कर रही थी, ओके एंड इवन क्रेड फैम पे जो बड़े बड़े हाँ कंपनीज हैं हाँ वो भी। हाँ सो इन अ सिमिलर वे, तो गिटहब एक्सटेंशन इज बेसिकली नेम ऑफ द प्रोग्राम, बट दे आर हायरिंग इंटर्न्स, ऑल दैट राइट इज okay great man and so Aniket, we all know that also creating content over YouTube and all, so first of all like why do you create content, and second of all like what are your future plans to go ahead with that? ओके। तो जब मैं 3-4 इवेंट हुए थे जिसके बाद मेरे को लगा अब करना था। सो पहला गूगल समर ऑफ कोड था, उसके बाद बार्कलीज वाला इंटर्नशिप था, एंड इसके बाद वाला इवेंट था रिमोट जॉब। सो Okay. एक्चुअली आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल हाँ कि करना कैसे है, क्या होता है।
So the major thing what I felt was कि मैं इधर मेरे को एक्चुअली आई एम नॉट अ पर्सन जो लिखता है, ठीक है, राइट। हम्म इवन मैं ग्रुप्स वगैरह में भी आई स्टे वेरी इनएक्टिव बिकॉज आई डोंट लाइक टू चैट। हम्म बात करना है कॉल पे कर लो, सामने से मैंने बात कर लो, आई एम ओके टू डू दैट। बट डूइंग दैट रिटन वाला कॉन्वर्सेशन मेरे को थोड़ा सा उसमें दिक्कत होता है। सो द फर्स्ट रीजन वाज कि आई वांटेड टू क्यूरेट वीडियोस, कि जब भी मेरे से यार कोई पूछे मैं उसको वीडियो दे दूं, ताकि मैं किसी का नाइंसाफी नहीं कर रहा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हाँ, मैंने किसी को आपके कुछ साथ बता दो, किसी को कुछ बता दो, राइट? एक्चुअली, या तो ये अंडरस्टूड। सारा जो चीज था। एंड इवन जैसे जैसे फॉर एग्जांपल गूगल समर कोड में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना था जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। हम्म तो मेरे कुछ जूनियर्स थे, जब मैं उनको मैं समझा रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कैसे करना है, आई वाज गिविंग देम 3 टिप्स अंडर 3 मिनट्स, मतलब ओके। तब बोल। एंड दे वर लाइक कि भैया आपका जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल आर सेइंग। हाँ हाँ। सो दैट वाज द फर्स्ट किक कि मे बी people like what I'm saying, and there are people who are appreciating the content, so I'm liking एब्सोल्युटली। it। अभी तो बहुत छोटा है यार, अभी तो अराउंड 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट दैट इज कूल आई गेस। जितना भी लोगों को हेल्प हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू डू। या And ultimately I just want to, I've not actually planned anything, I'm not sure कि करना क्या, but ओके। मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं वही कर रहा हूँ। And I'm ऑलराइट। learning to do a different sort of segment, जैसे मैंने mic लिया recently, so एंड लर्निंग वीडियो एडिटिंग वगैरह, एब्सोल्युटली। बिल्डिंग थंबनेल्स। सो आज वैसे मैंने थंबनेल बनाया था, काफी आई रियली लव्ड इट। लाइक पहली बार मैंने हाँ। बनाया था, लाइक ब्रो, लाइक गजब, लाइक मेरे को बहुत मजा आया या थोड़ा थंबनेल। लाइक ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ लाइक हाँ कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग कि मतलब उसमें अपने आप मजा आने लगता है थोड़ा थोड़ा, हाँ, एंड यू इवेंचुअली लाइक गो ahead and do all of these things which are required, right? So एब्सोल्युटली। एंड yeah एक और चीज था, दैट इज पॉडकास्ट, लाइक आई yeah रियली लव दैट सेगमेंट। एंड आई गेट टू मीट सो मेनी पीपल, लाइक, एंड सबका इतना लेजेंड, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिसेंटली डिड अ पॉडकास्ट शिवांश, so yeah he is working with an HFT, हम्म and he is like totally into the system, ठीक है, like हम्म totally is doing a very good competitive programmer, is हम्म very much into the IT वाला segment। और एक हम्म और बंदा था जिससे मैंने किया और को बोल के, he is also from IIT, but he हम्म wants to drop that, ठीक ओके। है, and he is building his own startup। तो Yeah. like the dimensions of people, the Yeah. dynamics of the Dynamics of people the that people I is. met, Hmm. absolutely like great। And I don't know, like कॉलेज में मेरे को इतने वैरायटी के लोग तो नहीं मिले एटलीस्ट, तो हाँ। ये चीज मेरे को मिल जाता है। सो Yeah, ये है। yeah. Even when I started out with like initially and started out with multiple experiments that I ran on my YouTube, right? And उसमें मेरे को ही पता लगा कि there are certain type of videos that are not working out, but podcast was something that is actually working out for me, and I genuinely enjoyed it, making it like as you said, that interacting with different kind of people, the variety that it comes with, and it just full of, I would say, new experience and new like everything related to that, right? So that's हाँ, actually great. All right, Aniket, like, is there anything that you would like to just a last piece of advice that you would love to give to our audience? okay. So first of all, thanks a lot, Sankal, for having me. Uh, you asked the question really light on every segment of it, and I tried to answer most of what you said. But since questions मेरे को थोड़ा like it was wide, so मैं on point ऐसे नहीं दे पाया. But I try to give majorly on point thing. So folks, like, I'm trying to do something and I failed a lot. Okay, Mm-hmm. ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार अप्लाई किया मेरे को चीजें मिल गई। Mm. आई गॉट रिजेक्शंस अ लॉट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब मैंने आईआईटी वाला सपना देखा था, फिर वो Mm-hmm. टूटा था, फिर मैं एनआईटी गया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब मैं स्कूल में था एंड टिल द पॉइंट, आई हैव फेल्ड मोर देन 150 टाइम्स। Mm-hmm. बट द वन थिंग इज कि मेरे को गिव अप नहीं करना है यार, अपने को करना है तो अपने को करते रहना है। एंड आई Absolutely. गेस आपके साथ भी वो चीज सेम रहेगा, बिकॉज देयर आर डेज दैट विल बी बैड, देयर आर Mm-hmm. डेज दैट विल बी गुड। Mm-hmm. जैसे recently, just before this podcast, I lost a collaboration call in which I was getting 70,000, Oh, but it is fine because मेरे को पता है कि नहीं मिला तो नहीं मिला, yeah. कुछ ना कुछ हो जाएगा अच्छा। So Mm-hmm. having the faith in yourself is important। and होता है यार कि काफी टाइम अपन ट्राई करते हैं, हाँ. अपने को नहीं मिलता। जैसे I was an MLS fellow, Mm-hmm. so I got rejected 8 times, but I Mm. did not stop applying, मैं अप्लाई करता रहा। एंड उसके Absolutely. बाद व्हेन आई बिकम द फेलो, आई वाज लाइक कि ओके, सो द प्रोग्राम इज नॉट एक्चुअली व्हाट आई वाज थिंकिंग, हाँ. दैट इज डिफरेंट। बट मैंने गिव अप नहीं मारा, बिकॉज 8 बार रिजेक्ट होने के बाद नॉर्मली लोग गिव अप कर Give जाते up हैं। कर देते हैं. Absolutely. बट दैट इज व्हाट आई हैव लर्न स्टेइंग विद पीपल अराउंड। फॉर Mm. एग्जांपल, लाइक आई आइडलाइज अ senior of my college, that is Rupesh Mohare. So he Okay. left IIT Delhi, he came Mm. to NIT Rourkela, Oh, and now he's a TEDx speaker as well. He has spoken in TEDx 5 or 6 times. He's a great guy. great. Yeah, Great. so like his love for physics is something, and his humbleness. तो Mm. ये सारी चीजें यार मैं लोगों से सीख रहा हूँ, Mm. and I hope I am able to convey a bit to you all. So Absolutely. It I was a don't know, to see my journey how it goes,
and Yeah. subscribe to my channel. Yeah, absolutely. Thanks a lot, Sankalp, Yeah. for having me. All right. Great, Aniket.